Okay, today's topic is very very sensitive. Sensitive, yeah, because it's about this, not this. Because everyone nowadays talk about mindset, mind. You have to be mentally strong and all and all and all. But no one talks about this. Your heart, yeah, your heart. Your heart is very very messy. For me, एज ए एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टीच यू ओके कि ये जो होता है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है मेरे केस में इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई गोल्स एंड ऑल बट वेन एवर समवन कुछ भी बोल देता है यार सामने से लाइक इफ़ आई नो समवन ठीक है मेरे पास रहने वाले लोग आई डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर्स थिंक चार लोग क्या कहेंगे दैट डजंट अप्लाई टू मी बट फॉर मी जो मेरे पास के लोग होते हैं ना अपने अपने धोखा जब देते हैं दर्द भरा होता है वो वाला सीन है मेरे पास मेरे साथ मतलब तो जब भी वो लोग कुछ बोलते हैं ना आई एम मेंटली strong, yes, that's true, but this heart it's broke into pieces. You saw the broken series of Siddharth, yes, late Siddharth. तो वहाँ पे जो बात होती है ना that overcoming phase of someone you deeply in love with or you respect they hurt you sometimes. तो वो जो होता है ना अंदर से दिल का टूट जाना आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज whenever you broke your heart someone broke your heart your parents or your love relationship or friendship whatever it is तो क्या होता है कि it teaches you something कि जो भी तुम दिल से चाहो ना उसमें अगर अटैचमेंट अटैच हो गया ठीक है एंड दे लेफ्ट यू योर हार्ट इज़ लाइक दिस अपार्ट तो तब तुमको ये समझना ज़रूरी है दैट यू हैव टू बी इमोशनली strong as you are mentally until and unless you want money you want to have a job or business पैसा कमाना है सोच रहे हो घर बनाना है गाड़ी खरीदना है you are mentally strong I believe you are mentally very very strong ठीक है but you have to be emotionally strong and how we can be emotionally strong it only depends on your emotional intelligence you should know yourself first okay what is your priorities in life everyone will go like this is life someone will live there someone will live there someone will live there ठीक है कोई भी साथ में नहीं रहेगा एट द एंड यू आर ओनली योर समझ रहे हो खुद के अलावा लाइफ में कोई नहीं है योर पेरेंट्स कैन लीव यू एट सर्टेन पॉइंट ऑफ योर लाइफ योर लव रिलेशनशिप मे बी ऐसा एक फेस आएगा ही दे विल ऑल्सो लिव ठीक है योर फ्रेंड्स इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप योर स्कूल फ्रेंड लेफ्ट यू ठीक है कुछ कुछ का होता है यू आर वेरी लकी उनको संभाल के रखो योर कॉलेज फ्रेंड योर यूनिवर्सिटी फ्रेंड दे ऑल कैन लीव यू नाउ योर कॉलीग्स if you change the job they will also leave you so the main point is you should support yourself and for that you have to find your inner peace within yourself you should know how to spend time with yourself you should know what you love what you don't love and you should make a boundary कब कब लोग हर्ट तुमको कर सकते हैं जब यू डोंट मेक ए बाउंड्री यू मेक ए बाउंड्री दिस इज़ द बाउंड्री यू कैन कम लाइक तुम अंदर नहीं आ सकते इसके अंदर दिस इज़ माई पर्सनल स्पेस इफ़ यू आर माई पेरेंट्स और लव रिलेशनशिप फ्रेंडशिप यू कैन कम दिस क्लोज ओके यू कैन for me it's my self-respect you can't hurt my self-respect never you can't hurt that okay if you hurt that once I'll kick your ass from my life it may sound rude but that's true okay so this is small video just to guys let you know that nothing in this world is permanent you are gonna die also okay you have to be emotionally that strong you are spending time with them you are feeling very happy good but don't attach to them okay because attachment is very very negative thing loving someone caring for someone treating them well you care about your kind your empathy that's great but you yourself attaching to that person for your own happiness or comfort this is very very dangerous okay you can love someone you can care for them you can respect them but don't ever कि तुम्हारी खुद की खुशी तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी खुद की लाइफ उनके साथ अटैच हो जाए सो दिस इज़ very very important so that's it for today's small clip regarding your emotional intelligence and you can increase that emotional intelligence by doing your favorite activity with yourself जैसे कि for the first step of being emotionally intelligent is aware of your emotions okay so you can try this 10-second rule okay whenever you're like your mind is very anxious you're frustrated you're stressed about okay count 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 calm your mind and now you think okay सामने वाला मुझे ये कहा है
हाउ आई शुड रिप्लाई, ठीक है, यू आर थिंकिंग ऑफ दैट, then you think, then you reply, then you act, then you show your emotions. This is called emotional intelligence. And how you conquer this? By very very important meditation, जो तुम्हारे मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हर चीज़ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मेडिटेशन इज़ नॉट लाइक कि साधु की तरह ऐसे 2 घंटे बैठे हुए. इट्स नॉट लाइक मेडिटेशन. मेडिटेशन इज सेल्फ अवेयरनेस. यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर अवेयर ऑफ योर इमोशनल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग. यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू. ओके, जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो आसपास हो रहा है, यू आर अवेयर ऑफ दैट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम साधु संत बन गए, दुनिया में क्या चल रहा है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट. ठीक है, दिस इज नॉट मेडिटेशन इन मॉडर्न टर्म. ठीक है, मेडिटेशन इज मॉडर्न टर्म. अगर मेरे हिसाब से मैं मेडिटेशन डिफाइन करूँ, ठीक है, यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, तुमको डीपली नहीं पता, दैट्स ऑल राइट, बट यू आर अवेयर ऑफ कि तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है. इनकेस तुम दुनिया के बारे में नहीं जानते हो, दैट्स फाइन, तुम अपने बारे में जानते हो. फॉर एग्जाम्पल, हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ, दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन. यू आर सिटिंग राइट नाउ, यू कैन डू मेडिटेशन राइट नाउ. ठीक है, डीप ब्रीदिंग इज one of the best beginner meditation ever. ठीक है, you can do deep breathing for like 10 to 15 minutes every day. ठीक है, जब भी तुम anxious feel करो, you do deep breathing, go for natural walk, you think about yourself, or you can just listen to your heartbeat. I love this one. Just listen to my heartbeat. This yes, the feeling of yes, I'm alive. I have this new day. ठीक है, कि मैं जिंदा हूँ. बहुत सारे लोग मर गए हैं, आज का सुबह नहीं देख पाए, आज की शाम, आज की ढलती सूरज नहीं देख पाए. ठीक है, आई कैन स्पेंड माई टाइम विथ माई फैमिली. आई हैव दिस एबिलिटी. बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. ठीक है, बी ग्रेटफुल फॉर एवरी लिटिल थिंग. यू डोंट हैव समथिंग, ओके, यू आर गोइंग टू वर्क हार्ड फॉर दैट. ठीक है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यू विल वर्क वेरी वेरी हार्ड फॉर दैट. कि मुझे वो चाहिए, बट आई एम सेटिस्फाइड विथ वट आई हैव राइट नाउ. दिस कॉल्ड ग्रेटफुल. सेकेंड पार्ट इज, पहले तो मेडिटेशन करना है, एंड दूसरा इज यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव. वो जो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा ना लाइफ में, तो वो एक सेटिस्फैक्शन तुमको सारे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से बचाएगा. एंड फ्रॉम द पास्ट कपल ऑफ डेज आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस अबाउट दैट, एंड नाउ आई एम रिलीफ फ्रॉम दैट बिकॉज ऑफ फॉर द फियर ऑफ डेथ. ये ऐसा होता है कि मरना है तो उसको याद क्यों करना है, बट आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. माई थर्ड पॉइंट इज बिकॉज हम लोग अभी क्या करते हैं, छोटी छोटी बात पे एंग्जाइटी फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, बट दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट. द अल्टीमेट इज़ आवर डेथ. वी आर गोइंग टू डाई. ठीक है, आज नहीं, कल नहीं, परसों, कुछ साल बाद हम मरेंगे, एंड सब लोग मरेंगे. ठीक है, नो वन इज़ इमॉर्टल. वी ऑल ह्यूमन बीइंग, एनिमल, जितना भी सब कुछ है, मरेंगे. ये दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी एक दिन. सो व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ नाउ. ठीक है, तुम अपने लोगों के साथ हो, तुम्हारे पास जितना जो चाहिए था तुम्हारे पास है. ठीक है, यू आर प्रेइंग टू गॉड. ठीक है, तो तुम अपनी इस लाइफ में जो तुमको मिला है और जो तुमको चाहिए, जो तुमको मिला है उसके साथ तुम सेटिस्फाइड रहो. जो तुमको चाहिए उसके लिए तुम मेहनत करो. ठीक है, और जो आने वाला कल है उसको ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो, और आने वाले कल के लिए आज तुम काम करो. ठीक है, कल का भरोसा नहीं है, क्या होगा नहीं पता. सो डेथ इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ. एंड तुम जब भी अपने फ्यूचर को लेके, कल क्या होगा, लोग इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, ये करना था मुझे नहीं हो पाए, यू शुड जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, एंड तुम ना लिख ही लो कि डेथ इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ. ये जब भी लिख दोगे ना, तुम्हारा अगर तुमको ये फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी वाला प्रॉब्लम है, तो ये तुम लिख दो किसी जगह पे, और ये इसको रिमाइंड करते रहो. द फियर ऑफ डेथ विल मेक यू ए गुड ह्यूमन बीइंग. क्यों? क्योंकि तुमको मरना है, एंड तुमको ऊपर वाले से डर भी लगना चाहिए कि तुम वो काम मत करो जो इंसानियत के खिलाफ है. ठीक है, सो दिस द 3 थिंग्स. पहले तो मेडिटेशन करो, अवेयरनेस फैलाओ. ठीक है, एंड दूसरी बात, ग्रेटफुल रहो फॉर एवरीथिंग, एंड तीसरी चीज़ है डेथ, द फियर ऑफ डेथ. सो इस 3 हिसाब से तुम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत बढ़ा सकते हो. सो आई होप दिस विल हेल्प यू गाइस, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. We'll see you guys in the next one. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड डू लेट मी नो कि कौन सा टॉपिक पे हम बात करें नेक्स्ट में. ठीक है, एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एज वेल. लाइक, शेयर, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको ये फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी वाला फीलिंग्स आते रहते हैं, एंड जो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे हर 2 सेकंड में सैड स्टोरीज डालते रहते हैं, एटीट्यूड वाला स्टोरीज डालते रहते हैं, उनके साथ भी शेयर करना. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. बाय, पीस आउट.